Hello, everybody. Today I'm going to launch my new series that is Society and Awareness. And in episode 1, I'm going to talk about psychological issues and STEM. And in this video, you will get to know about some facts and figures regarding psychological issues, how society deals with it. Psychological issue, as we know, is something which is happening inside of us. Psychological issues are compared to madness, and the treatment of which is still considered as a taboo. साइकोलॉजिकल इश्यूज मानसिक रोग या कोई परेशानी किसी को भी कभी भी हो सकती है, लेकिन आज भी हम लोग अपनी सोसाइटी में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि कोई उससे कितना अफेक्ट हो सकता है और कितना ज़रूरी हो जाता है उसके लिए हेल्प लेना। स्ट्रेस किसी के अपने हाथ में नहीं है, वो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है. So, on the topic of psychological issues, I would like to raise a very strong point these days, which is the anxiety issues of school students. I read it that the anxiety levels of today's school students is the same as those of mental patients from 1950. Yes, like I have done a lot of research before making this video, and I found that 1 out of every 20 Indian citizens are a patient or are suffering from depression. हमें पहले साइकोलॉजिकल इश्यूज को समझना बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ को पागलपन से तोलते हैं, हर उस इंसान के एक्शन को पागलपन से तोलते हैं। हर इशू पागलपन नहीं होता है, हर इशू डिप्रेशन नहीं होता है। हमें बस एक बार बैठकर उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, उसी फैमिली को सपोर्ट कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। रादर उनको ये बातें सुनाने के लिए कि आपका बच्चा पागल है या आप पागल हो, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। And this is the fact also. Like the way we understand the physical problem of some person or the physical pain of that person. We never took his or her mental problem as much serious like we take if that person is not physically well. Nowadays we are very much health conscious, okay, but we don't talk about the real problem over here, real problem which we all go through day in a day-to-day life, like mental issue or mental problem. I'm not saying that we are insane or mad. There is no peace of mind. It's always, to achieve this, to achieve that. And there is so much pressure that sometimes the human brain just shuts down. Ki, that's enough. जैसे मशीन में कुछ भी प्रेशर देंगे, ज्यादा लोड पड़ता है तो वो खराब हो जाती है. तो ऐसे ही इसमें भी जब हम ज्यादा प्रेशर देते हैं, जैसे स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इलाज के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं वो हमें पागल डिक्लेयर कर देगा, जो लोग हमारे सोसाइटी में लोग क्या बात कहेंगे. ऐसा लोगों को नहीं कहना चाहिए, ना ही किसी से डरना चाहिए. आपको अपनी प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए. The problems that we face somewhere in our life, it could be work stress, it could be exam stress, it could be any other personal stress which we go through, but somewhere we hesitate. We do not talk to our friends, family, or our partner. We hesitate to share our feelings, which is not at all correct, because keeping things to ourselves make it much more worse, and worse can lead to mental issues. There was a friend of mine who used to go to a psychiatrist, but she did not told anyone about it. She even told me after she finished her course because her mother told not to tell anyone. Like seriously. So this is my humble request to all my friends, all my colleagues, all my family members. If you are watching this video, then please come forward
talk to us, talk to your friends, talk to your family, or do whatever you feel like. मतलब if you feel like to dance, dance. If you want to watch a movie, watch a movie. Just release your stress, release your pain, release your sufferings, release your thoughts which are making it such a big issue. We will get this life only once, so live it to the fullest. Try to keep things simple. Talk to your friends, just go for a walk, dance. If you're fond of makeup, do makeup. If you're fond of shopping, go for shopping. It's really simple. If you don't want to do anything, just stay, simply stay at your place, do internet surfing, whatever make you feel happy, just do it, or just say it. Please don't make it a problem that lead to some psychological issue, or may take you to some psychologist or counselor. आज कितने ही साइकोलॉजिस्ट, कितने ही साइकाइट्रिस्ट लोग बन रहे हैं, पर उनके पास कितने लोग जा पाते हैं? अगर कोई जाता भी है तो उसे ये टैग मिल जाता है कि ये तो पागल है, या इसका दिमाग खराब है, या ऐसा ही कुछ। तो हम उस पेशेंट की प्रॉब्लम समझने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक इंसान जब पहले ही प्रॉब्लम में है, हम उसका मजाक उड़ाकर उसकी प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हैं। अगर कोई इंसान इतना फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ कर दे तो लोग उसका इशू बना लेते हैं कि भाई उसने ऐसा कर दिया, हमारा नुकसान हो गया, हमारे योग। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो वो इंसान है वो अंदर से कितना डैमेज्ड है। बस हम लोग को तो जज करना है, और हमें सबको जज करना। ना कि आप उस पर तरस खाएं, ना ही आप उसको टॉर्चर करें। खाली इसका इलाज यही है कि आप उससे प्यार से पेश। ये बीमारी कोई ज्यादा लंबी नहीं, अगर आप उसको प्यार से सहयोग देंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाली बीमारी होती है। So I'm here to talk about basic motive of making this video is to bring awareness. जागरूक होने का मतलब मेरा ये है कि इसको एक सिर्फ दिमागी बीमारी है, जैसे एक फीवर होता है, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। ये कहना बहुत ही गलत है। ऐसे जैसे आपके दूसरे शरीर के पार्ट वर्क करना बंद कर देते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही दिमाग की परेशानी के लिए भी हमें डॉक्टरी ट्रीटमेंट जरूरी। Do you know, according to WHO, 450 million people worldwide are suffering mental health issues. Mental health issue, guys, mental health issues. And the reason is hesitation. What society will think, what my parents will think, what my friends will think. And do you know another fact? Around 75% of people who are suffering this problem, they do not seek help. They don't go to any psychiatrist, they don't go to any counseling sessions, they don't seek help, guys, they don't seek help. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डरते हैं कि क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास या एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ? नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। And the worst part is this hesitation leads to suicides. तो मतलब हम एक इंसान को इतना उकसा देते हैं कि उसको अपनी डेथ तक का सहारा लेना पड़ता है। According to WHO, that there is one suicide in every 40 seconds. So I'm talking about facts here. So please come forward and help those are in need. So there was a girl to whom I was teaching. Introvert, बहुत चुप चुप रहती थी। ऐसा लगता था लाइक किसी से वो अपनी चीजों को शेयर करना ही नहीं चाहती है। बट यू नो, जब आप किसी को बहुत लंबे टाइम के लिए देखते हो, आपको लगता है शायद ये पर्सन है ही ऐसा। मुझे भी लगा। बट देयर वाज अ डे व्हेन आई वाज देयर टू टॉक टू देम। यू नो, एक एक्स्ट्रा पीरियड होता है जहाँ पर हम काउंसलिंग सेशन टाइप करते हैं। वहाँ काउंसलिंग सेशन करते टाइम में मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर की।
जिससे बच्चे उनसे जुड़ सके, वन टू वन कनेक्शन फील कर सके, क्योंकि आपको टीचिंग में पढ़ाने के अलावा भी अपने बच्चों से कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सम टाइम बीइंग अ टीचर आप वो कुछ कर जाते हो एक बच्चे के लिए जो उसका पेरेंट नहीं कर पाते। इवन सम टाइम बच्चे को एक पेरेंट से ज़्यादा आप में विश्वास होता है, एंड ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ ये उसी का एक एग्जाम्पल है। सो शी वॉज अ गर्ल, उसकी तो आई हैव स्टार्टेड टेलिंग हर समथिंग, दूसरों की स्टोरी मैंने सुनाना शुरू किया, कुछ अपनी भी सुनाई, एंड सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे भी नहीं समझ आया कि क्या रीजन था ऐसा, क्या मैंने बोल दिया, मे बी जो चीजें मैंने सुनाई वो शायद इतने सीरियस उससे सुना दी कि उसने उस चीज को फील कर लिया, बट समवेयर ना मुझे लगा कि नहीं, बात ये नहीं है। आफ्टर दैट जो काउंसलिंग सेशन था उससे मैंने सभी बच्चों को क्लास में भेज दिया। सो मैंने उससे पूछा कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वाई यू हैव स्टार्टेड क्राइंग। बहुत समय लिया उसने, लगभग आधे घंटे तक वो रोती रही, और तब मुझे पता लगा कि उसकी फैमिली में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, जो सभी जानते थे उसकी फैमिली में। ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं था या उसने बताया नहीं था। उसके बाद में उसकी फैमिली ने अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया। आपको लग रहा होगा लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वॉज दिस कि वो उस चीज को अंदर ही अंदर फील कर रही थी, वो चीज उसके साथ हुई थी। जिस पर्सन ने की, सबने उससे बातें की, आपस में डिस्कशन हुए, फैमिली डिस्कशंस हुए, लेकिन उससे किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया, उससे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली में उसको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, किसी ने नहीं की। और ये सच है हमारी फैमिलीज का, ऐसा होता है। ऐसी चीजों पर हम नहीं बात करना चाहते अपने बच्चों से, हमें लगता है शायद उनके अंदर एक डर है। नहीं, वो डर तब उनके अंदर बैठ जाता है जब उन बातों को उनसे कोई डिस्कस नहीं करता। बट उस दिन उसने मुझे वो बात बताई, एंड यू वोंट बिलीव कि उस दिन के बाद से वही बच्ची जो चुप रहती थी, सबको लगता था कि ये इसका नेचर है, यू you नो know, उसने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो मुझसे जुड़ गई, अपनी हर छोटी बड़ी बात को वो मुझसे शेयर करना चाहती थी। अगर आप ठीक हैं तो कम से कम आप किसी पर्सन के लिए ऐसा पर्सन बनिए जो आपसे सब कुछ शेयर कर सके, जिसे विश्वास हो कि एट एनी कॉस्ट, चाहे पूरी दुनिया उसे गलत समझेगी, आप नहीं समझेंगे। आपको गलत लगेगा तो आप उसे गलत और सही का फर्क बताएंगे। कभी हमने ये जानने की कोशिश करी कि उनके साथ क्या बीत रहा है? और हर साइकोलॉजिकल इशू पागलपन नहीं होता। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।